यहाँ पर हम लोग एक लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं कोलिजन थ्योरी करने के बाद। इसमें हम लोग एरोडोव की एक प्रॉब्लम है, सिंपल है, लेकिन इसमें लिखी हुई है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m1, दिस इज m1, collides elastically with a stationary particle of mass m2। जहाँ स्टेशनरी पार्टिकल है इससे कोलाइड करती है m2, m1 is greater than m2 and find the maximum angle through which the striking particle may deviate as a result of the collision। Means the particle, this is the particle having mass m1, it is striking to the particle m2 and the collision is elastic, means the kinetic energy of the system will remain conserved, and after collision m2 suppose some deviated in some this direction and another is in this direction after the interaction of very small interval of time. This is suppose is directed finally in the sense of which direction. Suppose it is it has a velocity v2 of mass m2 and it is suppose a velocity v1 of the particle of mass m1 and it makes an angle theta with the initial direction of motion and phi it makes an angle phi. This is the velocity of the particle m2. We are trying to maximize theta. Actually we have to maximize theta. In this situation the whole interaction between the particles under the observation of an inertial frame of reference. So if possible we apply the conservation of linear momentum, and the situation is also present here because the interaction between the particles is under, particles means the system of particles is under either of the internal forces or the external forces which are counterbalanced. So net force acting on the system of these two particles whose vector sum will be a 0 over all of the motion. So clearly we apply the conservation of linear momentum. Suppose it is moving with a velocity v1 after the collision, so linear momentum of the particle of mass m1 is this v1 and this is the linear momentum of the second particle which is initially at rest and after the requiring its velocity v2, and this is this vector sum is the total linear momentum of the system of particles after collision, and this is, and the right side of this is the total linear momentum of the same system of particle. Here additional linear momentum of this particle m2 is 0, so it is not appearing in our वेक्टर इक्वेशन 1। मतलब हम लोग का ये है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई होगा क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है और जो आंतरिक बल है दोनों इस तरह से हैं कि नेट फोर्स उनका 0 है।
सिस्टम के लिए। ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगी, तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगी इसके लिए। उसी तरह से एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स पेयर है इनके बीच, तो वो जो इस पर लगाएगी वो भी इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है। और जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है नॉर्मल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस से नॉर्मल सरफेस लगा रही है, और एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। और क्योंकि प्लेन के पैरेलल कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई कंपोनेंट नहीं होगी, सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट होगी, क्योंकि फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो इसलिए नेट फोर्स इस पर तो नहीं जीरो है, लेकिन सिस्टम पर जरूर जीरो है। इसलिए मैं कहूँगा कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से पूरे लीनियर सिस्टम की लीनियर मूवमेंट पहले बार किसी भी एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन ऑलवेज कंजर्व रहेगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन वेलोसिटी किस तरह से अब्रप्टली चेंज कर रही है ये नहीं पता होने के कारण हम लोग, जब हमें पता कुछ है कि जहाँ से ये फाइनली सेपरेट होती है इस एंगल पर, तो उस वक्त तो होगी, तो उसको हम लोग रिलेट जरूर कर सकते हैं। तो ये हुई, आप इसका, ये वेक्टर इक्वेशन है, आप इसका कंपोनेंट लेना चाहे तो ले सकते हैं उस डायरेक्शन में, इस सेंस में कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी m1 v1, और cos जो एंगल इधर से बना रही है v1 वो थीटा बना रही है, इसलिए cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से m2 v2 उस डायरेक्शन के मॉड है वो, और ये जो v2 लिख रहे हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ सॉरी, थोड़ा सा v2 और cos ऑफ फाई लिखेंगे, तो क्योंकि ये डायरेक्शन से एंगल, और ये जो होगी m1 और v0 cos ऑफ 0 हो गई, तो cos ऑफ 0 1 हो गई, ये हुई। इसमें देखना ये है कि m1 लार्ज है m2 से, हम लोग करते ये हैं कि m2 बाई m1 v2 cos ऑफ फाई इक्वल टू m1, सॉरी ये डिवीजन होगी, हाँ m1 नहीं सॉरी ये नहीं, यहाँ तो हो ही गई, डिवीजन कर दिए, तो v0 माइनस ऑफ v1 cos ऑफ थीटा। ये सिर्फ एक कंपोनेंट हम लोग इस सेंस में लिए, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट या तो इस तरफ या तो इस तरफ लीजिएगा किसी वेक्टर इक्वेशन का, तो m1 इस तरफ लेने पर m1 v1 cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन हो जाएगी, उस हिसाब से m1 हम लोग को ये इसी का है 1a इक्वेशन लिखा, m1 v1 साइन ऑफ थीटा, और इसका कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो ये फाई है, और पूरा इस सेंस में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस फाई का कॉस होगा, तो कॉस ऑफ द 90 डिग्री प्लस ऑफ फाई दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ फाई, तो m2 v2 साइन ऑफ फाई होगी, और इसका कंपोनेंट लीजिएगा इस तरफ, मतलब ये सेंस, तो वो 0 होगी, और इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग इसको ठीक से अगर एक साइड कर लेते हैं m2 v2, इसको एक m1 से डिवीजन के बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m2 बाई m1 सॉरी v2 इज द प्लस साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू, सोचा तो v1 साइन ऑफ थीटा, एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक है। अब इसमें करते ये हैं कि ये 1 का b हो गया, इन दोनों को देखिए, अगर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको m1 m2 बाई m1 स्क्वायर ऑफ v2 स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ फाई to square of b1 square of sin of theta, this is adding this m2 by m1 and the
square of this v2 square cos square of phi, and the right side of this is equal to v1 cos square of theta plus v naught square minus of 2 of v naught v1 cos of theta. If we adding this, we getting here m2, this is m2 by m1 and the square of this. देखा जाए तो ये होगी, इसमें यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए हो जाएगी क्या, इसमें आप लिखेंगे तो m1 स्क्वायर होगी, सॉरी v2 इसकी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये जो होगी ऐड होने पर सॉरी यहाँ दोनों ये 1 हो जाएगी और इधर फिर यहाँ 1 हो जाएगी, तो लिखी जा सकती है v1 स्क्वायर v नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ v नॉट v1 कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर दे रहे हैं, v2 को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, और v2 एलिमिनेट कैसे होगी, v2 का एलिमिनेशन कैसे होना चाहिए, 5 तो एलिमिनेट हो ही गई, ठीक है। हम लोगों ने अभी लीनियर मोमेंटम का सिर्फ इस्तेमाल किया है एक इक्वेशन का। अब हम लोग करते ये हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी सिस्टम की, तो उससे हमें एक और मिलेगा m1 v1 स्क्वायर हाफ भी होगी प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये हो गई टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आफ्टर collision, and it is equal to only one term here, that this is the kinetic energy of the system, another is 0, so it will be equal to 1 by 2 eliminate this is 1 by 2। हम लोग इसमें से m1 से डिवीजन करते हैं तो v1 स्क्वायर m2 by m1 v2 स्क्वायर एंड यहाँ वी नॉट स्क्वेयर, हम लोग v2 इल्यूमिनेट करना चाहते हैं, तो इसमें m2 बाई m1 v2 स्क्वेयर इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस v1 स्क्वेयर। यहाँ अगर हमें ये हो जाए तो लिख सकते हैं m2 बाई m1, ठीक है, m2 बाई m1 होल स्क्वेयर 2 स्क्वायर, हम लोग एडिशनल एक और मल्टीप्लाई किए दोनों साइड, m2 बाई m1 v नॉट स्क्वायर माइनस m2 बाई m1 v1 स्क्वायर, ये हो गई। हम लोग इस ये जो लेफ्ट साइड है इसको ये रखेंगे तो हम लोग को आ जाएगी m2 बाई m1 v नॉट स्क्वायर m2 बाई m1 v1 स्क्वायर, और राइट साइड जो है वो v1 स्क्वायर प्लस ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ v नॉट v1 कॉस ऑफ। अब क्या किया जाए, क्वाड्रेटिक ला रहे हैं इसमें हम लोग, ये पहला तो ये दोनों 1 प्लस m2 बाई m1, ठीक है, और v1 स्क्वायर हो गई ये, ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 v नॉट v1 कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ v नॉट स्क्वायर, और लिखेंगे हम लोग 1 माइनस m2 बाई m1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम लोग करते ये हैं कि इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, प्योरली m2 बाई m1, देखिए v1 बाई v नॉट डिवीजन किया v नॉट स्क्वायर से, तो इस तरह से हो जाएगी 2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा v1 बाई v नॉट एक हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर से किए हैं, और यहाँ पर हो जाएगी 1 माइनस m2 बाई m1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को सॉल्व नहीं करनी है, हम लोग को जस्ट निकालनी है कॉस ऑफ थीटा, एक रिलेशन है, थीटा को मैक्सिमाइज करनी है, उस हिसाब से अब हम लोग अप्लाई करते हैं। दिस इज रियल
for all V1 V2s. This is the ratio. This is the ratio. This is real for. This is quadratic in this. So discriminant of this quadratic equation must be greater than or equal to 0. So minus of 2 cos of theta and the whole square of this minus of 4 a times and c, और उस हिसाब से हम लोग m2 by m1 यहाँ स्क्वायर a because a plus b into a minus b, this must be greater than equal to 0. 4 is taken outside, so cos square of theta minus of 1 plus of m2 by m1 the whole square must be greater than equal to 0. यहाँ पर हम लोग ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसमें इस दोनों में थीटा प्लस ऑफ m2 by m1 all square must be greater than equal to 0. This will be equal to sin square theta must be greater than equal to 0. हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे सोचे m2 by m1 whole square minus sin square of theta must be greater than equal to 0, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं m2 by m1 प्लस ऑफ sin of theta into m2 by m1 sin of थीटा। जैसा अभी सिचुएशन है दो चीजें होंगी इसमें से कि या तो ये अब साइन ऑफ थीटा की दो वैल्यू होगी, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू माइनस m2 बाई m1 भी होगी और m2 बाई m1 भी होगी। स्क्वायर साइन थीटा का अगर देखें हम लोग चेक करें, ये जो है साइन थीटा का नंबर लाइन है, कह सकते हैं डायमेंशन लेस है ही, तो इसमें साइन थीटा का साइन चेक करें हम लोग तो इसमें पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव होगी। अब गौर कीजिएगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि सॉरी ये माइनस होगी, सॉरी ये माइनस, तो हम लोग को ये कंडीशन फुलफिल करना है इस जोन में, तो साइन ऑफ थीटा जो होगी m2 बाई m1 लाइन बिटवीन साइन थीटा इज लाइन बिटवीन साइन थीटा लाइन बिटवीन ऐसे हो जाएगी, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये साइन थीटा, क्लियर बात है कि साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू m2 बाई m1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस m2 बाई m1। चांसेस हैं मैक्सिमम वैल्यू अगर देखनी है तो साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू m2 बाई m1। ये देखिए साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब थीटा अगर कम होगी, सपोज करते ये साइन ऑफ अल्फा है लेस देन एंड इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब गौर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं थीटा इससे छोटी होगी अल्फा से, प्रिंसिपल वैल्यू ही अगर ले लिया जाए या 1 ये भी ले लिया जाए तो हो सकती है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अल्फा के। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी छोटा होगा एंगल किसी से तो उस पर साइन की वैल्यू कम होगी, वही बात है। तो ये साइन थीटा लेस देन है साइन अल्फा से, मतलब थीटा कम होगी अल्फा से, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी थीटा की वो अल्फा होगी, और अल्फा लिखी जा सकती है साइन इनवर्स ऑफ m2 बाई m1। ये डिफाइंड भी है और पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि m2 की वैल्यू लेस है m1 से, इसलिए ये m2 इक्वल टू m1 तक भी हो सकती है। m2 अगर m1 हो जाएगी, दोनों मासेस सेम हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू 90 होगी, और ये होती है
सिचुएशन यही रहा तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यह है सिंपल प्रॉब्लम है आयोडोव की। ठीक है, थैंक यू।